Good morning, student. Today, my topic related the Olympic movement. In the Olympic movement, first point, Asian Olympic game. But today, uh, I teach the Olympic movements. In the Olympic movement, modern Olympic games. Modern Olympic games. The first point is very important. Modern Olympic games. Modern Olympic rate for important board के और एग्जाम पे have to be very important. In the modern Olympic game, there are the 6, 7, 8 topics. In points, modern Olympic game. The first is a Olympic motto. Number 2, Olympic flag, Olympic flame, Olympic award, Olympic oath, and rule for regulations, opening ceremony of the Olympic Games, closing ceremony of the Olympic Games, and summer Olympic Games and winter Olympic Games. So let's start from मॉडर्न ओलंपिक गेम. मॉडर्न ओलंपिक गेम कैसे बना, कैसे इसकी शुरुआत हुई, किस तरह से जो है मॉडर्न ओलंपिक के कौन फादर हैं, ये सब चीज़ें हम जो हैं ओलंपिक मॉडर्न ओलंपिक में हम लोग पढ़ेंगे. सो द क्रेडिट टू स्टार्ट द modern Olympic game goes to Pierre Braun de Coubertin. Pierre Braun de Coubertin of France. Coubertin was born in Paris on 1 January 1862. His family member wanted him to join the army, so he joined the Sainik Academy. But after some time, he left it and started studying political science. Having studies political science, he came to know about the national and international problems. He through national and international problem could easily be solved through Olympic Games. It was Coubertin's dream to restart the Asian Olympic game at world level. For the purpose, he called a meeting of various countries in 1893. Some countries, Italy, Greek, Spain and Sweden, were in favor of commencing these games, whereas rest of the countries opposed it. Again on 16 June 1894. A meeting of 13 countries was held in Paris, in which 75 representatives participated.
presided. It was presided over by Coubertin, and it was resolved that sports competition should be held every fourth year on the line of Greek Olympic Games. And every nation should be invited to participate after much endeavors. Coubertin succeeded in enlisting worldwide support, and the first modern Olympic Games were held in Athens in 1896. 1896 में फर्स्ट ओलंपिक को मॉडर्न ओलंपिक जो है वो स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद आफ्टर 4 ईयर 1900 में जो है सेकंड हुआ, फिर 1904 में थर्ड ओलंपिक को किया गया। इन द 1896 एथेंस ओलंपिक गेम, फर्स्ट ओलंपिक गेम एथेंस में हुए थे 1896 में। द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स only 9 countries participated. This number gradually increased, and in the 1972 Munich Olympic Games, 122 countries participated in 1972. These Olympics could not be held during the two world war. जब टू वर्ल्ड वॉर हुए थे उसमें ओलंपिक गेम नहीं हुए थे, बाकी लगातार हमारे ओलंपिक गेम चल रहे हैं। सो दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, एंड द सेकंड इज द पॉइंट ऑफ ओलंपिक मोटो। ओलंपिक मोटो जो है, ओलंपिक मोटो comprises 3 Latin words. क्या है 3 Latin words? Citus, Altius, Fortis. These are 3 Olympic motto, which mean Citus माने faster, Altius higher, and Fortis stronger. ये इसकी मीन्स है। Respectively, the motto was coined by a French educator, Father Dion, in 1895. 1895 में ये 3 मोटो जो हैं फादर डियॉन ने हमको दिए थे। ठीक, नंबर third point related to the modern Olympic game is the first is the motto, Olympic mottos, and next is the Olympic flag. Olympic flag कैसे वो स्टार्ट हुआ, किसने दिया, कौन से टाइम पे जो है हमें इसको हमें मिला ओलंपिक फ्लैग। Olympic flag. Olympic flag was created in 1930 at the suggestion of Baron de Coubertin. It was first solemnly inaugurated in Paris in June 1940. 1940 में पहला ओलंपिक फ्लैग जो है बैरन डी कॉबर्टिन ने बताया कि ये फ्लैग होना चाहिए। ठीक है, ओके, बट इट वाज होस्टेड फॉर द
first time in the Olympic Stadium at Antwerp Olympic Games, which were held in 1920. Olympic flag is made of white silk and contain 5 interlocking rings. और इनके अपने अपने मतलब हैं, मीन्स है। ये जो 5 रिंग्स हैं, ये सर्कल जो है गोल गोल 5 जो है, इसके अपने मीन्स है। सर्कल इन 5 कलर्स representing 5 countries of the world. अब कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनको जो है प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करते हैं ये दोनों, ये 5 रिंग्स? अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड अफ्रीका. The 5 rings have different color: yellow, green, red, black and blue. The interlocking of the circle symbolizes cooperation and friendship in all world. तो ये ओलंपिक फ्लैग हमारा है। नंबर आफ्टर देन ओलंपिक फ्लैग के बाद जो है ओलंपिक फ्लैग। ओलंपिक फ्लैग के बाद ओलंपिक फ्लेम। अब ओलंपिक फ्लेम है, क्या है इसका? The Olympic flame is a symbol of knowledge, life and happiness. It also symbolizes peace. This flame or torch is lighted in Olympic village of Greek, and it is carried by the runners to the place where the Olympic Games are going to be organized. During this process, it keeps burning. At the end of the closing ceremony of this game, this flame is extinguished. Next point is the Olympic award. Olympic award, देखिए मैंने आपको बताया था कि एशियन गेम में ओलंपिक अवार्ड किस तरह से दिया जाता है। उसमें ऑलिव ऑयल की जो है, ऑलिव की लीफ, ऑलिव जो है जैतून की पत्तियां जो हैं उसका एक मुकुट बनाकर उसको पहनाते थे और पत्तियां होती थी उसमें जैतून की, और खाने का कुछ सामान दिया करते थे जो विनर होता था, और कोई एनिमल भी दिया करते थे जैसे कि गोट हो गया, पॉप हो गया या हैन हो गई, जो सेकंड नंबर पे जो आएगा, थर्ड नंबर पे आएगा उसको हैन दे देंगे। तो कुछ एनिमल खाने का सामान ये सब चीज दिया करते थे, काव दे दी कोई, इस तरह से। अब जो भी एनिमल था मतलब उसमें कहा कि एनिमल विनर को दिया जाता था। अभी मॉडर्न ओलंपिक जो है, मॉडर्न ओलंपिक में ये सब चीजें नहीं थी। क्या था ये हम पढ़ते हैं। इन मॉडर्न ओलंपिक अवार्ड्स this first, second and third positions holders are awarded with gold, silver and bronze medals and a certificate respectively। भाई एक मेडल तो जो होते हैं वो दिया उन्होंने,
उसमें गोल्ड का भी है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, पूरा गोल्ड नहीं होता है, उसमें कुछ परसेंट जो है सिल्वर और ज़्यादा गोल्ड होता है, कुछ ब्रॉन्ज होता है, और इसी तरीके से ब्रॉन्ज ज़्यादा होगा, ब्रॉन्ज वाले में गोल्ड नहीं होगा, अदर कोई मटेरियल होगा। तो इस तरीके से हम वो मेडल देते हैं और सर्टिफिकेट भी रहता है। तो द नेक्स्ट 5 पोजीशंस होल्डर आर आल्सो अवॉर्डेड विद द सर्टिफिकेट ओनली। जो लास्ट के होंगे उनको जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है ओलंपिक ऑथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। सपोज एग्जाम में उन्होंने 1 मार्क्स में दे दिया, 2 मार्क्स में दे दिया ओलंपिक फ्लेम, 3 मार्क्स में दे दिया ओलंपिक ऑटो। अगर पांचों दे दिए उन्होंने कि ये पांचों को एक्सप्लेन करना है, 4 के 4 एक्सप्लेन करना है, तो ये 5 मार्क्स देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के नजदीक से देखा जाए। ओके, अब है ओलंपिक ओथ। ओलंपिक ओथ क्या है? ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ द ओलंपिक गेम्स, oath taking ceremony is held by the athletics who assemble in the sports stadiums. Representatives of the host countries come forward holding the flag. The flag bearers of the competing nationals also take up their positions. The representative take oath on the behalf of all the athletes who raise their right arm and repeat the oath after जो भी वहां पे प्लेयर वहां पे होगा, जो बोल रहा है, हिम हर जो भी है, ठीक है, वो उसके हिसाब से मतलब जो वो बोलेगा उसके बाद रिपीट जो करेंगे वो प्लेयर्स करेंगे। अब ओथ क्या है? ओथ इज अ वी स्वेयर दैट वी विल टेक पार्ट ऑफ द ओलंपिक गेम इन लॉयल कॉम्पिटिशंस, respecting the regulations which govern them and desires of participating in them in the true spirit of sportsmanship for the honor of our country and for the glory of sports. ये ओलंपिक ओथ है। नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर ऑल जो है ये मैंने लिखा नहीं है, रूल फॉर कॉम्पिटिटर्स। ये क्या है? रूल फॉर कॉम्पिटिटर, ऑल मेल्स एंड फीमेल कैन पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम if they are amateur, but nowadays professionals are also allowed to participate in some of the sports. These sportsmanship are sent by their national Olympic committees. No sport person can participate in these games without the approval as well as recommendations of National Olympic Committee. ये हमारे कुछ पॉइंट हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के। और फर्स्ट हमारा है ओलंपिक मोटो, ओलंपिक फ्लेम, ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक अवार्ड, ओलंपिक ओथ एंड रूल फॉर competitors in the modern Olympic Games. But I will take some questions related to this topic.
first question is elucidated about the symbol of modern Olympic game. मॉडर्न ओलंपिक की गेम के सिंबल्स के बारे में इन्होंने बताया है। ये जो सिंबल्स हैं ओलंपिक सिंबल्स, ये हम अब आने वाले समय में पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम सिंबल्स की बात करें तो ये वही हैं जो सिंबल्स हमने जो है 5 रिंग के बारे में हमने पढ़ा था। अब ये 5 रिंग जो है, एक तो हम फ्लैग को भी हम बोलेंगे, एक सिंबल्स हमारे पास जैसे कि साइटियस, अल्टियस एंड फोर्टियस। साइटियस क्या है? फास्टर। अल्टियस क्या है? हायर। और फोर्टियस क्या है? स्ट्रॉन्गर। ठीक। और ओलंपिक सिंबल्स में जो है हमारे जो 5 रिंग्स हैं वो आ जाएंगे। अगर क्वेश्चन सपोज आता है कि एलुसिएट द 1 मिनट एलुसिडेट अबाउट द सिंबल्स ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम, तो वो 5 हमारे जो है फ्लैग के जो पॉइंट वो आ जाएंगे। जैसे कि ओलंपिक सिंबल्स में है, ओलंपिक फ्लैग इज मेड ऑफ द वाइट सिल्क एंड कंटेन 5 इंटरब्लॉकिंग रिंग्स। तो रिंग्स हमारे वो सिंबल्स होंगे और जो रिप्रेजेंट करते हैं 5 कंट्रीज को, और वर्ल्ड में जो 5 कंट्रीज है जैसे कि अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड अफ्रीका। द 5 रिंग हैव डिफरेंट कलर, येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू एंड ब्लैक्स। ये हमारे जो है सिंबल्स के रूप में हम इसको कर सकते हैं। अब व्हाट अबाउट द ओलंपिक फ्लैग, ये क्वेश्चन हमारा बनता है। और फ्लेम, राइट अबाउट द ओलंपिक फ्लेम, तो आपको जैसे मैंने बताया था कि ओलंपिक फ्लेम क्या है, तो उसको आप लोग जो है राइट करेंगे और इसको याद भी कर लें कि ओलंपिक फ्लेम, द ओलंपिक फ्लेम इज अ सिंबल ऑफ नॉलेज। ज्ञान का जो है एक ज्ञान है, ज्ञान जो सिंबल्स है वो ज्ञान का एक प्रतीक है। ठीक है। और ये जो फ्लेम है, लाइफ एंड हैप्पीनेस, खुशी और जीवन के लिए ये जो फ्लेम है ये एक प्रतीक है। ठीक है। इट इज ऑल्सो सिंबोलिसिस पीस। दिस फ्लेम और टॉर्च इज लाइटेड और kindled in the Olympic village of Greek, and it is carried by the runner to the place where the Olympic Games are going to be organized. During this process, it keep burning. At the end of the closing ceremony of these games, this flame is extinguished. Okay, ये हमारे फ्लेम था और ओलंपिक सिंबल जो हमने बताया। इसमें व्हाट आर ओलंपिक अवार्ड, देखिए व्हाट आर ओलंपिक अवार्ड, अगर उन्होंने पूछा कि व्हाट इज एशियन ओलंपिक अवार्ड, तो तब आप एशियन के बारे में लिखेंगे। सपोज की क्वेश्चन आया कि व्हाट आर एशियन ओलंपिक अवार्ड्स, तो आप एशियन ओलंपिक। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर मॉडर्न ओलंपिक अवार्ड, तो आप मॉडर्न ओलंपिक अवार्ड के बारे में लिखेंगे। सपोज अगर आता है कि व्हाट आर ओलंपिक अवार्ड, तो आप मॉडर्न ओलंपिक अवार्ड के बारे में ही लिखना है। ऐसा नहीं कि एशियन ओलंपिक अवार्ड के बारे में लिख दिया, क्योंकि इसमें बताया नहीं है मॉडर्न है कि एशियन है। लेकिन जो लेटेस्ट चल रहा है, 100 साल से चल रहा है, 120 ईयर हो गए हैं ओलंपिक को चलते हुए, तो 120 ईयर से चल रहे हैं, तो ओलंपिक अवार्ड के बारे में जो हमारा जो मॉडर्न ओलंपिक अवार्ड है उसी के बारे में आपको एग्जाम में लिखना है। अब आपको लिखना क्या है ओलंपिक अवार्ड में। सपोज क्वेश्चन आता है कि डिफाइन ओलंपिक अवार्ड, एक्सप्लेन ओलंपिक अवार्ड। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस तरह से बनते हैं, व्हाट इज ओलंपिक अवार्ड, एक्सप्लेन ओलंपिक अवार्ड एंड लिस्ट ओलंपिक अवार्ड
तो आपको क्वेश्चन के आंसर इस तरह से देना है। ओलंपिक अवार्ड, दिस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन आर होल्डर are awarded with the gold, second is the silver, and third is a bronze medal and a certificate respectively. The next 5 positions holder are also awarded with the certificate only. ये इसके जो है ओलंपिक अवार्ड है। ठीक, इसको आप लिख लेंगे। अब इसमें राइट डाउन द ओलंपिक ओथ, तो क्वेश्चन कैसे ऐसे भी आ सकता है कि राइट डाउन द ओलंपिक ओथ, एक्सप्लेन ओलंपिक ओथ, डिफाइन ओलंपिक ओथ। तो अगर आपको डिफाइन पूछा तो पूरा लिख देंगे ओलंपिक कैसे आया, कैसे नहीं आया, ये किस तरह से किसने इसको बनाया और कैसे कैसे वो ये हुआ। लेकिन अगर एग्जाम में आता है कि राइट डाउन द ओलंपिक ओथ, खाली मतलब ओलंपिक ओथ को लिखना है, तो आप लिखेंगे वी स्वेयर दैट वी विल टेक पार्ट इन द ओलंपिक गेम इन लॉयल कॉम्पिटिशंस, respecting the regulations which govern them and desires of participating in them in the true spirit of sportsmanship for the honor of our country and for the glory of sports। ये आपको इसके बारे में लिख देना है। ठीक, अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, अदर क्वेश्चन जो है, मेंशन द रूल फॉर द कंपटीशन फॉर मॉडर्न ओलंपिक गेम, रूल ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, इसके बारे में मैंने आपको बताया था अभी मॉडर्न ओलंपिक में रूल्स ऑफ कॉम्पिटिटर क्या है। देख लेते हैं क्वेश्चन, फिर इसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे। व्हाट इज द ओलंपिक मोटो, ये क्वेश्चन बनता है 2 नंबर में, 3 नंबर में। राइट डाउन द फेमस ceremony of the Olympic Games. What do you mean by the Citius, Altius and Fortius? ये मैंने आपको बताया था। अगर एग्जाम में आता है कि what is the mean of the Citius, Altius and Fortius, तो आप Citius का मतलब लिखेंगे, सिंपल लिख देंगे, आपको 2 मार्क्स में है। Citius माने फास्टर, Altius माने हायर एंड Fortius माने स्ट्रॉन्गर, ये आपको लिखना है। अब इसमें क्वेश्चंस और भी हैं, पर लेकिन हम इसे अभी एक्सप्लेन करते हैं। 3 मार्क्स से क्वेश्चन देख लीजिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ द ओलंपिक फ्लेम, एक शॉर्ट नोट लिखना है जो मैंने आपको बताया था ओलंपिक फ्लेम के बारे में, ओलंपिक फ्लैग के बारे में, तो उसको देख लेते हैं कि शॉर्ट नोट क्या है। स्टूडेंट, अगर एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, या मैं आपको क्वेश्चन करने को देता हूं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ओलंपिक फ्लैग, तो ओलंपिक फ्लैग के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट ऐसे ही आएगा, Olympic flag was created in 1930 at suggestions. Olympic flag, एक शॉर्ट नोट है। Olympic flag was created in the 1930 at the suggestion of Baron de Coubertin. It was first inaugurated in Paris in June 1940, but it was hosted for the first time in the Olympic Stadium at the Antwerp Olympic Games, which were held in 1920. Olympic flag is made of the white silk and contain 5 interlocking rings या सर्कल है वहां बने हुए 5, इन 5 सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग 5 कंट्रीज। अभी सर्कल भी मैं आपको दिखा देता हूं किस तरह के सर्कल हैं, क्लासेस में है चल रही है, तो आपको जरा 1 मिनट मैं टिकट कर देता हूं। दिस आर 5 सर्कल्स, दिस आर ओलंपिक फ्लैग। 5 countries of the world,
जो रिप्रेजेंट करते हैं। द 5 रिंग्स हैव डिफरेंट कलर, येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू एंड ब्लैक। द इंटरलॉकिंग ऑफ द सर्कल सिंबोलिसिस कॉपरेशन एंड फ्रेंडशिप। ये है वो शॉर्ट नोट जो मैंने आपको बताया। मैंने आपको बुक में भी आपको सेम इसी तरीके से है। एंड ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक, ये हम बाद में पढ़ेंगे। एंड ब्रीफली एलुसिडेटेड अबाउट द अवार्ड ऑफ एशियन ओलंपिक गेम। इसको जरूरत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट ओलंपिक ओथ। ओलंपिक ओथ को पूरा डिस्क्राइब करना है। पहले तो मैंने आपको खाली ओलंपिक ओथ बताई थी, पूरा डिस्क्राइब करना है कैसे हुई, किसने बनाई, कहाँ कहाँ इसको जो है हमने गाया है। डिस्कस अबाउट क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम एंड डिस्कस अबाउट द ओपनिंग सेरेमनी इन द मॉडर्न ओलंपिक गेम। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओपनिंग सेरेमनी वगैरह। मेंशन द रूल फॉर द कंपटीशन इन द एशियन ओलंपिक गेम। एशियन ओलंपिक गेम के मैंने आपको कंपटीशन के जो रूल्स बता दिए थे, अभी आज मैंने आपको मॉडर्न ओलंपिक के बताए हैं। एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ द चाचा नेहरू स्पोर्ट अवार्ड। ये बाद में पढ़ाया जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटीज, ये भी बाद में होगी। और डिस्कस अबाउट द ओलंपिक फ्लैग एंड द ओथ। देखिए वही चीजें बार बार इसको घुमा के दे रहे हैं। पहले तो 1 मार्क्स में तो 1 क्वेश्चन को डिस्क्राइब करना है, 2 मार्क्स में तो 2 क्वेश्चंस को, उसमें 2 चीज ऐड हो जाएंगी, जैसे ओलंपिक फ्लैग और ओलंपिक मोटो, ओलंपिक फ्लेम, ओलंपिक ओथ, इस तरह से इसको जोड़ लेंगे। एक इसमें दे रखा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न ओलंपिक गेम। तो इसको हम देख लेते हैं। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहां पर। डिस्कस अबाउट मॉडर्न ओलंपिक गेम। और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न ओलंपिक गेम, तो इसको हम समझ लेते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट इन द मॉडर्न ओलंपिक गेम को हम कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आ सकता है, और 5 मार्क्स में अगर आ गया तो डिस्कस द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, और उसमें जो है कुछ चीज दे देंगे कि एक्सप्लेन द ओथ, या फिर उससे रिलेटेड जो फ्लैग है, मोटो है, 5 मार्क्स में बना देंगे। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। तो हम इससे स्टार्ट करेंगे इसको कि द क्रेडिट टू द स्पोर्ट्स द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स गोज टू द पियरे ब्रॉन्ज दे कोबर्टीन ऑफ फ्रांस। फ्रांस के थे ये। कोबर्टीन वॉज बोर्न इन पेरिस, पेरिस में हुए थे। ठीक, और जनवरी 1862 में पैदा हुए थे। थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा उसके बारे में, कौन थे, क्या थे, कहाँ के थे, इन्होंने बनाया था, तभी इसमें शॉर्ट नोट में आएगा ये। His family members wanted him to join the army, so he was joined the Sainik academies. But after some time, he left it and started studying the political science. उसमें इंटरेस्ट था political science में, जो उन्होंने स्टार्ट की थी। Having studied political science, he came to know about the national and international programs. He through national and international program could easily be solved through Olympic Games. It was Coubertin's dream to restart the Asian Olympic game at the world level. For this purpose, he called a meeting of the various countries in 1893. Some countries, Italy, Greek, Spain, and Sweden, were in the favor of the commencing these games, whereas rest of the countries opposite it.
Again, on 16 June 1894, a meeting of 13 countries was held in the Paris in which 75 representative participated. It was presided over by the Coubertin, and it was resolved that sport competitions should be held every fourth year on the line of the Greek Olympic game, and every national should be invited to the participated. After much endeavor, Coubertin succeed in the enlistings worldwide support, and the first modern Olympic Games were held in the Athens in 1896. In the 1896 Athens Olympic Game, the first modern Olympic game, only 9 countries participated. This number gradually increased, and in the 1972 Munich Olympic Games, ये चीजें भी इसमें थोड़ा बहुत ऐड कर लेना, एक दो लाइनें इसमें आ जाएंगी. 122 countries participated. These Olympics could not be held during the 2 World War. तो ये शॉर्ट नोट आ जाएगा इसमें मॉडर्न ओलंपिक गेम में. सो मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बताए हैं. छोटा टॉपिक लिया है मॉडर्न ओलंपिक गेम का, ये मैंने आपको करा दिया है. रिवीजन दोबारा हो कब हो इसके बारे में नहीं है, लेकिन एग्जाम से रिलेटेड भी क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन आपको किया है. सो थैंक यू वेरी मच. आई विल गिव द असाइनमेंट रिलेटेड टू द टॉपिक modern Olympic game, or I will give the some questions, that many questions in the Olympic motto, Olympic flame, Olympic flag, Olympic award, Olympic oath, and rule and regulation the competitions in a modern Olympic game. Next day I will take the related to the opening ceremony, closing ceremony, कैसे होता है, बंद कैसे होते हैं, किसने करवाया, ये सब चीजें कैसे शुरू हुई, and winter Olympic games and the summer Olympic games. So thank you very much, and God bless you.